Hi everyone, our today's topic is concentration of solution. First of all, what is solution? तो solution होता है homogeneous mixture of two or more components. Homogeneous mixture means the mixture whose composition is uniform throughout. यानी पूरे mixture की composition same होती है. If the solution contains only two components, it is called binary solution. Binary solution, it has only two components. The components are solvent plus solute. Solvent and solute. Now, how will you recognize which component is solvent and which component is solute? So, the component which is present in excess amount in the solution is called solvent, and the component which is present in less amount, it is called solute. What is the concentration? Concentration is the amount of solute present in a given amount of solvent. Given amount of solvent में कितना solute present है, that is the concentration. Now different concentration terms are used for solution. We will discuss these different concentration terms. Number one is percentage concentration. Percentage concentration, it is of three types. Number A, mass percentage. Mass percentage, it is simply the mass of solute present in 100 grams of solution. Means how many grams of solute are present in 100 grams of solution. We can write percentage W by W. इसे W by W की फॉर्म्स में लिखते हैं. इसमें परसेंटेज W by W. इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है. स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल w प्लस कैपिटल W. स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट. दोनों का सम W प्लस W इज द मास ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम परसेंटेज. It is written as V by V. It is the volume of solute present in 100 volume units of the solution. It is the volume of solute in 100 volume units of solution. Means अगर हम वॉल्यूम यूनिट मिलीलीटर ले लेते हैं तो हाउ मेनी ml of solute is present in 100 ml of the solution. So percentage V by V is equal to volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Volume of solute it is V1, volume of solution is V1 plus V2. What is V1 V2? V1 is the volume of solute, V2 is the volume of solvent. तो volume of solution में क्या होगा? Solute plus solvent दोनों का सम कर देंगे वॉल्यूम पर. The third term is mass upon volume percent. Mass upon volume percent or percentage. It is written as W upon V. Percentage W upon V. तो इसमें solute का W, solution का V. Means how many grams of solute are present in 100 ml of the solution. It is the mass of solute. That means how many grams present in 100 ml of solution. परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 पार्ट्स में कितने पार्ट सॉल्यूट है. तो बस यूनिट्स अलग अलग है. मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट है तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम परसेंटेज W अपॉन V. इट इज इक्वल टू द ऊपर क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution multiplied by 100. What is the mass of solute? It is W. Volume of solution it is V multiplied by 100. Mass of volume of solution is in ml. It is the percentage concentration. The next term is molarity. Molarity is very important concentration terms. Molarity is the number of moles of solute present in 1 liter of the solution. Molarity. It is denoted as capital M. It is the number of moles of solute per liter of solution. Per liter of सॉल्यूशन मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलरिटी. मोलरिटी M इज इक्वल टू
number of moles of solute, number of moles of solute divided by V, यानी volume of solution in liter. We can write the number of moles as small n and volume of solution as V in liter, or we can write small n यानी number of moles equal to होता है mass upon molar mass, mass of solute upon molar mass of solute upon volume in V, or we can write W upon m into V. Then we can write molarity is equal to small w upon m into V. It is the molarity, where W is the mass. किसका mass? Solute का mass. What is small m? Molar mass. Molar mass of solute. It is the molarity. तो molarity n upon V or W upon m into V. Now if the molarity is 1, यानी आपका solution है m is equal to 1, it is called molar solution. Molar solution. If the molarity is m upon 10, it is called decimolar. Decimolar. If it is m upon 100, it is called centimolar. And if it is m upon 1000 concentration है solution का, तो it is called millimolar. Means कई बार क्वेश्चन में सीधे नहीं देता कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज m upon 100, वो लिखेगा वी हैव ए सेंटीमोलर सॉल्यूशन और मिलीमोलर सॉल्यूशन. तो मिलीमोलर और सेंटीमोलर मींस सेंटीमोलर m upon 100 होगी मोलरिटी, मिलीमोलर सॉल्यूशन है तो m upon 1000 होगी उसकी मोलरिटी. द नेक्स्ट टर्म इज द नॉर्मेलिटी. What is normality? It is denoted by n. It is the जहाँ पे यहाँ मोलरिटी में मोल्स आता है वहाँ नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. यानी मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू number of gram equivalents, EQ लिख रहा हूं मैं equivalents को, of solute divided by volume of solution in liter. It is the normality. Now what is the gram equivalents? तो अब gram equivalents होते हैं mass of solute W upon equivalent mass of solute. Mass of solute upon equivalent mass of solute. It is the number of gram equivalents divided by V. So we can write normality is equal to small w upon E into V. It is the normality. Where E, W क्या है यहाँ पे, वही mass of solute and E is the equivalent mass of solute, and V is the volume of the solution in liter. So normality n is equal to W upon E into V. Here also if the normality is 1, the solution is 1n, it is called normal solution, just like molar solution. जैसा अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन होता है अगर मोलरिटी 1 है, तो इफ द नॉर्मेलिटी इज 1 द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन. सिमिलरली n upon 10 है डेसी नॉर्मल, और बिल्कुल उसी तरह से n अपॉन 100 है सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं, और n अपॉन 1000 है अगर, तो इट इज कॉल्ड मिली नॉर्मल. एंड इट इज कॉल्ड सेंटी नॉर्मल. दिस इज द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. नाउ we will drive a relationship between the normality and molarity. देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें जो है मोलरिटी गिवन होती है, नॉर्मेलिटी की हमें उसमें रिक्वायरमेंट होती है
ये नॉर्मेलिटी गिवन है, मोलरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी को एक दूसरे में हम इन्हें इंटरचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, N एंड M, रिलेशन बिटवीन N एंड M। तो देखिए अभी हमने आपको बताया फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, इट इज द W अपॉन E इंटू V। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, इट इज द W अपॉन M इंटू V। डिवाइड देम, N अपॉन M इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V अपॉन W अपॉन M इंटू V। तो W से W कैंसिल, E से E कैंसिल, M अपॉन में है तो ऊपर पहुंचेगा, यानी यहाँ बचा ऊपर 1 अपॉन E, नीचे बचा 1 अपॉन M, इट इज़ M अपॉन E। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू M अपॉन E। व्हाट इज M? M इज द मास ऑफ सॉल्यूट एंड व्हाट इज E? इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास को हम आपको सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। तो ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इस रेशियो को हम बोलते हैं एन फैक्टर, इस रेशियो को बोलते हैं एन फैक्टर। अब व्हाट इज दिस एन फैक्टर? एन फैक्टर होता क्या है? तो एन फैक्टर होता है आपका, अगर आपका सॉल्यूट बेस है तो इट इज द एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। अगर आपका जो सॉल्यूट है वो बेस है तो एन फैक्टर इज द एसिडिटी ऑफ बेस। और अगर आपका सॉल्यूट एसिड है तो इट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। और इफ योर सॉल्यूट इज ए सॉल्ट तो इट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटायंस और नेगेटिव चार्जेस ऑन एनायंस। इट इज द टोटल पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटायंस और टोटल नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि सॉल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। तो एन फैक्टर, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी को एन फैक्टर बोलते हैं। अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायंस। शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल Na2CO3 सॉल्ट ले लेते हैं और हमें मान लीजिए इसकी हमें आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज आर देयर? 2। क्यों? क्योंकि सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सोडियम को, तो 2 पॉजिटिव चार्ज। कितने नेगेटिव चार्ज? 2 नेगेटिव, इक्वल होंगे मैंने बताया। तो कोई सा ले लीजिए आप। तो यहाँ पर जो आपका एन फैक्टर होगा इस केस में, यहाँ पर तो एन फैक्टर जो होगा आपका वो होगा आपका 2। तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं n अपॉन m इज इक्वल टू 2, और आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 2 इंटू m। इस तरह से हम डायरेक्ट मोलरिटी को नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया Na2CO3 का। ओके, ये एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है इक्विवेलेंट मास डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म आता है आपका मोलैलिटी। नंबर 4 पे आता है आपका मोलैलिटी, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इट इज डिनोटेड बाय m डैश। व्हाट इज मोलैलिटी? तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, बाकी से डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है मैंने आपको नॉर्मलिटी और मोलैलिटी में भी बताया था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी मोलरिटी में क्या आता है? ऊपर सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहाँ पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये सिंगल अकेला ऐसा टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसमें अपॉन में जो है मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पर किलोग्राम ऑफ
सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। अब तक हमने आपको जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताए हैं सभी में हमने अपॉन में आपको बताया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलिलिटी में क्या होता है, अपॉन में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलिलिटी m डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट को हमने बताया था n, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल W लिख देते हैं, वो भी इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मोलिलिटी का m डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी W अपॉन m इंटू कैपिटल W इन kg। दिस इज द मोलिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपका है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फ्रैक्शन होता है मोल्स का, टोटल कितने मोल्स हैं उसमें सॉल्यूट के मोल्स का फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल का फ्रैक्शन। लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n ले लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इट इज टेकन एज कैपिटल N। देन द व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1 इज इक्वल टू, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं उसके मोल्स ऊपर और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट का कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल स्मॉल n अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x2, तो सॉल्वेंट के कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपको सॉल्यूट के कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर सॉल्यूट के अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नाउ इफ वी ऐड द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इट कम्स आउट टू बी 1, क्योंकि फ्रैक्शन है सेम सॉल्यूशन का टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। तो ये देखिए आप ऐड करेंगे तो दोनों का सेम है तो n प्लस n ऊपर आ जाएगा, कैंसिल आउट 1 1। सो इफ वी नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट देन वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है हम सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट का हमें पता है तो हम सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का मोल फ्रैक्शन पता है दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 में से माइनस करके। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। वन मोर concentration terms is the ppm concentration. It is the ppm, parts per million. Parts per million. It is ppm. What is the ppm concentration? It is the number of parts of solute. Number of parts of solute present in 1 million of solution. Present in 1 million parts of solution. 1 million parts of solution. यानी सॉल्यूशन को अगर सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट में डिवाइड कर दें तो उन 1 मिलियन पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला होता है इसका पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6 दैट इज 1 मिलियन। अब ये जो अमाउंट है ये आपका जो है कोई मास की यूनिट भी हो सकती है अगर मास में दिया हुआ है, या वॉल्यूम की यूनिट भी हो सकती है अगर वॉल्यूम में दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आपका सॉल्यूशन का भी अमाउंट जो है अगर सॉल्यूट का मास है तो सॉल्यूशन का भी मास ही लिखेंगे आप, या वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही लिखेंगे। अमाउंट आपकी जो है ये मास और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, सेम होनी चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की।
तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 6। एक छोटा सा एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे हम बोले आपका द कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर हैज कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -5 ppm फॉर एग्जाम्पल। तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है कि 1 मिलियन पार्ट्स, यानी अगर हम इसे ग्राम में लेते हैं तो ग्राम में लेंगे, मिलीग्राम, ग्राम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम ग्राम में ले रहे हैं 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज़ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -5 ग्राम। ये मतलब है ppm का कि 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम दैट इज 1 मिलियन ग्राम में कितने ग्राम आपका सॉल्यूट है। तो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -5 ppm अगर है, दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज़ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -5 ग्राम। तो ये आपका ppm कॉन्सेंट्रेशन